اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن بڑی پہلی خبر، ظاہر بات ہے کہ ہم حماس، غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر بھی پہلی خبر دکھا رہے ہیں نیشنل نیوز میں بھی۔ تو پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ گزشتہ کل حماس نے زبردست انداز میں گھات لگا کر اسرائیلی کتوں پر حملہ کیا۔ 60 اسرائیلی کتے ہلاک ہوئے ہیں اور 60 اسرائیلی فوجی جہنم میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ مجاہدین نے کئی ٹینک اور کئی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ غزہ میں فی الحال اسرائیل کی طرف سے قتل عام جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 700 فلسطینی ایک ہی دن میں شہید ہوئے ہیں، اور خبریں ہیں کہ قبلہ اول کے امام محترم کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے۔ حجر الدیق میں اسرائیلی فوجی کوارٹر جہاں حماس نے گزشتہ کل کارروائی کر کے سبھی کو ہلاک کر دیا، وہ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اسرائیلی فوجی بیٹھے ہیں اپنے جھنڈے کے ساتھ۔ تمام کے تمام اسرائیلی فوجیوں کو حماس نے 60 اسرائیلی فوجیوں کو ایک ساتھ جہنم میں پہنچانے کا کام کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق القسام بریگیڈ نے غزہ کی پٹی کے شمال مشرق بالخصوص بیت حانون میں بھی صہیونی فوجوں کے ساتھ جھڑپیں کی اور ان کی پیش قدمی کو روکا۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ملک کی 5 ریاستوں میں الیکشن تھے۔ بی جے پی کے سامنے کانگریس چاروں خانے چت ہوتی ہوئی نظر آئی۔ مدھیہ پردیش پر بھگوا راج برقرار رہا۔ راجستھان اور چھتیس گڑھ سے بھی سیکولرازم، ایکتا، محبت، امن، شانتی کا صفایا ہو گیا، بی جے پی آ گئی۔ تلنگانہ سے کے سی آر کی 10 سال کے دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا، کانگریس کو تلنگانہ کا اقتدار مل گیا۔ خیر، بی جے پی نے 3 ہندی ریاستوں میں جیت کا کریڈٹ مودی کو دیا ہے۔ مدھیہ پردیش کا الیکشن بھی آپ کے سامنے آ گیا، کل سیٹیں 230 تھی، بی جے پی نے 164، کانگریس نے 65 اور دیگر 1۔ راجستھان میں کل سیٹیں 199، بی جے پی نے 115 لی، کانگریس نے 69، دیگر 13۔ چھتیس گڑھ میں کل سیٹیں 90، بی جے پی نے 54، کانگریس نے 35، دیگر 1۔ تلنگانہ میں کل سیٹیں 119 تھی، کانگریس نے 64، بی آر ایس 39 اور مجلس اتحاد المسلمین نے 7 سیٹوں پر جیت حاصل کی۔
लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि गुज़िश्ता कल के 5 स्टेट्स के रिजल्ट और नताइज को लेकर किसने क्या कहा। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को प्यार, भरोसा और आशीर्वाद देने के लिए मैं अवाम का, जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा आप ईवीएम का शुक्रिया अदा कीजिए। और कमलनाथ ने यह कहा है कि हमें अपोजिशन में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है और हम इस जिम्मेदारी को मुकम्मल तरीके से अदा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इन रियासतों में जहां हम हारे हैं, इन रियासतों में हम दुगनी ताकत के साथ फिर वापस आएंगे। वहीं पर राहुल गांधी ने तबसरा करते हुए कहा कि अवामी ताईद को, अवामी राय को हम आजिजी के साथ कबूल करते हैं। कांग्रेस की शिकस्त पर राहुल ने तबसरा किया है। रियासत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हमारे रिपोर्टर अबरार हाजी अकरम साहब ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन पहले इच्छापुर, जो बुरहानपुर के करीब है, वहां एक तबलीगी इज्तिमा होने जा रहा था, लेकिन बारिश के माहौल की वजह से आप जानते हैं कि माहौल कैसे बन गया था। तमाम जगह पर काफी तकलीफें आई है, लेकिन बुरहानपुर के इच्छापुर से राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता और मोहब्बत की एक शानदार मिसाल सामने आई है कि हिंदू भाइयों का मंगल भवन में यह तबलीगी इज्तिमा बड़ी शान और शौकत और उत्साह के साथ मुनक़िद हुआ। बताया जा रहा है कि मंगल भवन की प्रबंधन समिति ने इस मंगल भवन को मुस्लिम समाज के इस पवित्र तबलीगी इज्तिमा आयोजन के लिए दे दिया। और अबरार भाई ने बताया कि खास बात यह रही कि उन्होंने बाकायदा तकरीबन 70,000 रुपये उनका किराया बनता है, वो किराया भी उन्होंने नहीं लिया। मुस्लिम समाज ने इस नेक काम के लिए मंगल भवन की प्रबंध समिति, ऐसी इच्छा देवी प्राथमिक संस्था के शांताराम पवार, उपाध्यक्ष गणेश महाजन का पुष्प और मालाओं के साथ सम्मान किया और उनको धन्यवाद, उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस तरह के मौके देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इच्छापुर के बागवान बिरादरी के लोगों ने जब उनसे इस मामले को लेकर बात की तो उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आपने हमारे हर काम में साथ दिया है, किसी काम में आपकी जानिब से हमें कोई तकलीफ, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई है, हम कैसे मना कर सकते हैं। हमारे लिए तो ये खुशखबरी की बात है। खैर, इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ ये भी है कि आज भी हमारे मुल्क में राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम प्रेम का माहौल बना हुआ है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि ऐसे लोग जिनकी दुकानें सिर्फ नफरतों पर चलती है, तो वो लोग राष्ट्रीय एकता को और अमन और शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इच्छापुर के तमाम हिंदू भाइयों, मंगल भवन और तमाम ही साथियों को हम दिल की गहराइयों से राष्ट्रीय एकता की एक अच्छी और उम्दा मिसाल पेश करने पर बधाई पेश करते हैं। अगला दिन तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि तेलंगाना में 10 साल का जो दौर हुकूमत था केसीआर का, मुसलमानों ने काफी नाराजगी का इजहार किया और आखिर केसीआर का दौरे हुकूमत 10 साल खत्म हो गया और कांग्रेस को तेलंगाना मिल गया। लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी अपने पूरे इलाके में जो 7 सीटें उनकी रहती है, वो 7 सीटें ओवैसी बचाने में कामयाब हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद बलाला, मुबीन अहमद, जाफर हुसैन, मेराज, मीर जुल्फकार, माजिद हुसैन, कौसर मोयुद्दीन, 9 असेंबली सीटों पर मजलिस के 7 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। यानी यूं समझिए कि वो अपनी साख बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन 9 में से फिर भी 2 सीटें उनके हाथ से निकली है। और तेलंगाना के जो वजीर आला थे CM थे चंद्रशेखर राव, इन्होंने अब गवर्नर को इस्तीफा भेज दिया है क्योंकि केसीआर की पार्टी वहां पर पोजीशन खो चुकी है। ऐसे एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल की शक्ल में कुछ भूत सामने आते हैं, बल्कि ये तमाम की तरह तमाम मैनेज, जी हां, खरीदे हुए और बिके हुए होते हैं।
लोग भी अब इनसे नाराज हो चुके हैं। एग्जिट पोल पर किसी का कोई भरोसा नहीं रहा और एक बार फिर ढोल के पोल साबित हुए हैं इलेक्शन के एग्जिट पोल। या मुल्क की 4 बड़ी रियासतों के असेंबली इलेक्शन कि वोटों की गिनती के नतीजे एग्जिट पोल के नतीजे के बिल्कुल उल्टे आए हैं। असल नतीजे में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 3 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना झंडा लहराया, वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना के कायम के बाद गुज़िश्ता 10 वर्षों से इख्तिदार में रही बीआरएस को इख्तिदार से हटाया, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती पीर को होगी। तो इस तरीके से गोया कि एग्जिट पोल ने जो कुछ भी ढोल बजाया था या जो कुछ भी कहा था वो सब के सब झूठा साबित हुआ और एग्जिट पोल झूठे हैं, खरीदे हुए हैं, मैनेज रहते हैं, ये भी एक बार साबित हो चुका है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। एक अच्छी खबर, इसको मैं यूँ समझिए कि एक तरगीब देने के लिए लगा रहा हूँ ताकि और भी मुसलमान इस बात को समझें। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि निकाह महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम और महबूब सुन्नत है। जितना इसको आसान किया जाएगा, समाज से बुराइयाँ, ज़िना, हरामखोरी ख़त्म होगी। मैं आपको बताऊं कि जलगांव शहर के अतीक अहमद, जो वादत इस्लामी के जिम्मेदारों में से, इनके फर्जंद जनाब मोहतरम जैद शेख, इनका निकाह बहुत ही सादगी के साथ फैजपुर शहर की हाजरा मस्जिद में अदा किया गया। वो निकाह मैंने खुद पढ़ाया। यहाँ से बारातियों की शक्ल में 10 या 15 लोग बारात में गए थे और वहां पर लड़की वालों की तरफ से कोई खाने वगैरह का इंतजाम नहीं किया गया। यहां तक कि मैं काजी मोहतरम भी वहां पर निकाह पढ़ाकर चाय वगैरह लेकर सब निकल गए। तो एक अच्छा पैगाम वहां पर जैद के निकाह के मौके पर लोगों को दिया गया कि निकाह कितना आसान है, उसको अमली और प्रैक्टिकली शक्ल में आवाम में और अहले ईमान में आम किया जाए। उसके बाद फिर एक और अच्छी चीज जैद के निकाह से मिली कि दूसरे दिन वलीमा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अदा किया गया और फिर एक खास बात यह हुई कि तीसरे दिन अपने बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को भी जमा किया गया और विवाह परिचय निकाह परिचय के उन्वान से हिंदू भाइयों को जमा किया गया और वहां पर दावत का काम भी किया गया। इस प्रोग्राम में पूसत से बाकायदा प्रोफेसर सलमान साहब, जो पीएचडी स्कॉलर है, इन्होंने हिंदू भाइयों के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निकाह के ताल्लुक से और इस्लाम की खुसूसियात के ताल्लुक से दावती अंदाज में अपनी बात पेश की। लोगों को ये काम जो निकाह वाला अमल हुआ है वो भी, जो फैजपुर में और वलीमे के साथ बरादरान वतन को जमा करने वाला ये अमल भी बहुत पसंद आया और तमाम लोगों ने बाकायदा जैद और उनके पूरे परिवार, अतीक अहमद और उनके परिवार को ऐसे मिसाली निकाह पर खूब मुबारकबादियां, बधाइयां पेश की। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तेलंगाना से एक और खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि भारत के मशहूर क्रिकेटर और साबिक हिंदुस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी जुबली हिल्स हैदराबाद से इलेक्शन हार गए। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर को बीआरएस के उम्मीदवार ने शिकस्त दी। तो तेलंगाना की जुबली हिल्स असेंबली इलेक्शन पर साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन इंतखाब हार गए। 26वें राउंड के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को कुल 62,343 वोट मिले। उन्हें केसीआर की पार्टी बीआरएस के उम्मीदवार गोपीनाथ ने मात दी। गोपीनाथ 15,939 वोटों से उन्हें शिकस्त दे दी। बीजेपी के दीपक रेड्डी 35,000-83,000 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इलेक्शन को लेकर एक और आ रही। जी हाँ, खबर कमलनाथ
जी हाँ, कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने अपने रिवायती गढ़ छिंदवाड़ा असेंबली हलके से मुसलसल दूसरी बार 35,000 से ज्यादा वोटों की फर्क से जीत हासिल किया है। साबिक वजीर आला ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपने करीबी हरीफ विवेक को छिंदवाड़ा में शिकस्त दे दी। वहीं पर मध्य प्रदेश में मौजूदा जो सीएम हैं यानी शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भी जीत हासिल की है। तकरीबन 1 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है और अपने बयान में इन्होंने कहा है कि मोदी का जादू चला है। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से बढ़कर तारीखी जीत हासिल की है और शाम 5 बजे तक यूं समझिए कि कुल 230 असेंबली सीटों में से 61 पर कामयाबी हासिल की और 105 पर आगे चल रही थी। आखिर में रिजल्ट ये आया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अक्सरियत के साथ जीत हासिल की है और मध्य प्रदेश के एक तारीखी और कदीम शहर है बुरहानपुर में भी बीजेपी के उम्मीदवार अर्चना चिटनिस ने तकरीबन 33,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो अब सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि अर्चना चिटनिस को उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस के वोट खाकर आपको 33,000 की लीड दिलाई है, क्योंकि उन लोगों ने भी 31,000 ही वोट हासिल किया है। यानी लोगों में अवाम में ये चर्चा हो गया है कि अर्चना चिटनिस के जीतने की वजह सिर्फ और सिर्फ वो लोग बने हैं मुसलमानों में जिन्होंने कांग्रेस का वोट खाया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के देवबंद जहां तारीखी और कदीम दीनी मरकजी इदारा है दारुल उलूम से बड़ी खबर आ रही है कि उर्दून के एक्स-पीएम साबिक वजीर आजम ने दारुल देवबंद का दौरा किया। दारुल और देवबंद ऐसी पुरकशिश जगह है जहां मुख्तसर क़याम में हसरत पूरी नहीं होती, ऐसे अल्फाज भी उन्होंने अपने इजहार ख्याल में फरमाए हैं। डॉक्टर मोहम्मद ज़ंबियात ममलिकत जॉर्डन के साबिक नायब वजीर आजम और एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद ज़नीबात या ज़ंबियात, क्या नाम है वो समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने गुज़िश्ता कल दारुल देवबंद का दौरा किया और कहा कि दारुल की ज़ियारत से कल्बी मसरत हासिल हुई। इस अजीम इदारे की मायनाज दीनी व इल्मी खिदमात से दुनिया रूशनास है और इस इदारे की शोहरत दुनिया भर में फैली हुई है। दारुल देवबंद आने की तमन्ना मुद्दत से दिल में थी जो अल्लाह ने आज पूरी की, लेकिन ये ऐसी पुरकशिश और अर्ज़ मुक़द्दस है जहां 100 दिन भी क़याम किया जाए तो भी हसरत पूरी न होगी। दारुल देवबंद पहुंचने पर इदारे के मोहतमिम मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी, नायब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी, नायब मोहतमिम मुफ्ती राशिद आज़मी, पेशकार मुफ्ती मोहम्मद रेहान कासमी, शोबे अंग्रेजी के उस्ताद मौलाना अब्दुल मलिक, ऑनलाइन फतवा के नाजिम मुफ्ती मोहम्मदुल्लाह और दीगर जिम्मेदारान इदारा ने उनका खैर मकदम किया।